So everybody knows about the whole conflict which is happening for the last 6 days now. And obviously this is one of the most complex issues in the world. Many of you would have come across with whatever is coming in the news media for the past 1 week or so. You would not have heard about this earlier. How many of you knew, I mean, before this happened, knew already that any such conflict is persisting? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 15, 16 people. So I believe 10, 15%, 15%, right. Okay, and how many of you noticed after it has happened and it's being covered in media? But still there are many who have not. And how many of you have been following it on a day-to-day basis? That's a very little number. Yeah, that's the problem area. So I will not preach this, that this is something which is necessary. You should already studying a journalism and mass communication program, so you should understand that these are the things which you must know. Directly or indirectly, whichever job you will undertake in the media industry. But then you have to be informed on all such things which are happening in the world. Okay, so to begin with, I would like to know, because why I decided to have this session. One, obviously, because this is something which everybody must understand. Two, this is a complex issue wherein even if any one of you, or rather not only you people, but anybody else also, any common citizen, if they try to understand this, it's not difficult. It's difficult even to understand through different sources. So even if you have an intention to understand, it's difficult to understand. Second reason is that in media, the kind of media that we have today, there are a lot of false narratives are being run on present-day media. That's again a problem, because people are either confused or they are victim of a certain propaganda, the way most of the news channels are broadcasting news or trying to analyze the news. So that is how I thought that it's necessary on my part to give you the basic understanding of the whole issue. Now, before proceeding further, I would like to understand from any 2, 3 of you, as only 4, 5 hands perhaps were raised, those who are following the issue. So those who have been following the issue for the last 6, 7 days, any one of you can give me some understanding of his or her. Yeah. Sir, my name is Mohammad Anas. I am from BGMC course, first year. Sir, मैंने कुछ pointers लिखे थे. The history of sir ये इसकी जो थी. Sir, World War I से पहले यूरोप के अंदर जूस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे. वो हिस्ट्री से, काफ़ी हिस्ट्री से, मीडियम हिस्ट्री से ही उनके ऊपर अत्याचार करते थे. सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले थियोडर हर्जी ने लेट 19th सेंचुरी के अंदर जियानिज्म की थियोरी दी थी कि जो कुरान के अंदर जो प्रॉमिस लैंड है जूस के लिए, उसे बनी इसराइल कहते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, उनके लिए प्रॉमिस लैंड है, जहाँ पे इस टाइम पैलेस्टीन था, उस टाइम ब्रिटिश मैंडेट का पैलेस्टीन. तो उन्होंने जब ये थ्योरी दी, उसके बाद दी हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो हिटलर ने किया था. उसके बाद काफ़ी ब्रिटेन की मदद से काफ़ी सारे जूस यहाँ पे माइग्रेट हुए थे. पहले द मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन था और उसके साइड में ट्रांस जॉर्डन था. सर, यहाँ पे जब वो सेटलमेंट्स हुई यहाँ पे, तो यहाँ के जो अरब कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को कि ये हमारी लैंड है और यहाँ पे हम किसी को आने नहीं देंगे. फिर भी क्योंकि ब्रिटिश के अंदर थी, तो उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई. फिर धीरे धीरे और भी काफ़ी सारी माइग्रेशन हुई डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से भी काफ़ी हुई, क्योंकि कोलकाता के अंदर काफ़ी सारे जूस रहते थे, उन्होंने यहाँ पे माइग्रेट किया. फिर जो अरब कंट्रीज़ थी, उन्होंने इसको अपोज किया और फिर इनकी 7 डे वॉर हुई, जिसके अंदर इसराइल सरप्राइजिंगली जीत गया. तो उन्होंने इसराइल ने काफ़ी सारे लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया. इजिप्ट के भी एक सेनाई करके एरिया, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, वो बाद में उन्होंने दे दिया था. सर, फिर ऐसे ही जेरूसलम के ऊपर बात आई, क्योंकि कुछ जो एरिया रह गया था पैलेस्टीन के पास, उसके अंदर जेरूसलम भी आता था. फिर सर जेरूसलम पे वो थोड़े धीरे धीरे करके उन्होंने
उसके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया, क्योंकि जेरूसलम एक बहुत होली सिटी है इन द अब्राहमिक रिलीजन, द क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म। और जो टेंपल माउंट है जहाँ पे इनका सोलोमन का टेंपल है, द सेकंड टेंपल जो रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी वेस्टर्न वॉल है, उसके ऊपर इस्लाम का सबसे जो पहला जो किबला था जिसकी तरफ हम फेस करके नमाज पढ़ते थे, वो है जिसके कहते हैं मस्जिदुल अक्सा। और सर जहाँ से हमारे प्रॉफिट ने मेराज का सफ़र किया था, वहाँ पे वो रॉक भी है जिसे डोम ऑफ द गोल्डन डोम कहते हैं। सर फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर सर यूएस ने इसको इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज कर लिया था। उसके बाद फिर हमास ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी पहले से था, उन्होंने इस पर काफ़ी सारे अटैक करे इसराइल के ऊपर, जो ईरान बैक्ड हमास है, क्योंकि जो फंडिंग आती है वो ईरान से काफ़ी आती है, क्योंकि ईरान इसका कट्टर दुश्मन है। फिर सर जो अभी कुछ टाइम से चल रहा है, वहाँ पे हमास ने किसी फेस्टिवल के ऊपर सर हमला कर दिया था, और फर्स्ट हमला तो पहली बार जो हमास ने इसराइल के ऊपर कर दिया। ठीक। तो इसीलिए हमास ने ये रिवेंज लेने के लिए उन्हीं के फेस्टिव डे पे अब फिर से हमला किया था। तो पहले इजराइल ने किया था, फिर हमास ने किया था। ठीक है, एनीबडी एल्स? सर मैंने ये रिसेंट उसका बताया था, वो मुझे पता था कि वो तो काफ़ी टाइम हो गया, वो 1 साल हो गया इस बात को। सर मैंने ये अभी जो रिसेंट हो रहा है उस पर बताया था। ठीक है। क्या हुआ? बस ख़त्म? शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। नोबडी एल्स नोज एनीथिंग अबाउट द होल इशू। सरप्राइजिंग। देख लो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वालों ने बता दिया। चलो ठीक है। हमास जो है वो यूएन सर्टिफाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस सर्टिफाइड? यूएन? अच्छा, ओके। यूएन और यूएस में क्या फ़र्क है? यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड। तो काम तो दोनों एक ही करते हैं। You wouldn't have understood what I'm saying. You understood what I said? Okay. Okay, so इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए obviously you have to go to the genesis and history, as अनस ने बहुत सारी चीज़ें बताई भी, और लेकिन हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम अपने देश में भी देखते हैं, वी आर ट्राइंग टू resolve the issues which are buried in history, but issues which are buried in history are too difficult to resolve unless sanity prevails on all the stakeholders, on all the concerned sides. तो हिस्ट्री में तो जो पूरा आई विल ट्राई टू पुट इट इन एज ब्रीफ एज पॉसिबल, एज सिंपल एज पॉसिबल. If we go to the genesis and to the history, that is traced to the before Christ period, right? And since then, almost हम अगर बात करें करीब 2500 से 3000 साल पहले की पूरी हिस्ट्री, सो ऑब्वियसली बहुत लंबा पीरियड है. और उस पीरियड में देयर हैव बीन मैनी एम्पायर्स, मैनी अप्स एंड डाउन्स. बट अगर हम उसको बहुत ही ईजी तरीके से समझे मिडिल ईस्ट के लिहाज से, तो इट हैज़ बीन इन द रीसेंट टाइम, इट हैज़ बीन दिस होल रीजन, this Palestinian region, this has been part of the Ottoman Empire for almost 600 years or so. ठीक है, Ottoman Empire you can understand easily because the remaining part is Turkey today, right?
सो एक तरह से सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि टर्की के हिस्सा के अंडर में रहा दिस होल पैलेस्टीनियन रीजन फॉर ऑलमोस्ट 600 ईयर्स। उसके पहले बहुत लंबे समय तक अलग अलग पीरियड में रोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। ठीक है, तो इसको हाउ आई लुक एट एनी इंटरनेशनल इशू, one you have to understand the demographic problems in that particular any region, whether India or Palestine, I mean anywhere if you want to understand some issue तो demographic तरीके से समझना पड़ेगा, that is one. And then the alien powers, alien powers basically the all white people, whether UK or US or Rome, I mean people from all these countries, the way they have been subjugating and occupying different parts of the world. तो पिछले 1000 साल की अगर हिस्ट्री आपको देखनी है तो बल्कि और पहले से अगर आप अलेक्जेंडर के टाइम से देखें तो सारी हिस्ट्री रही है कि कैसे आई मीन वाइट पीपल हैव बीन infiltrating in different parts of the world, in Asia particularly, right from Egypt to India, and then they have been subjugating the land and they have been doing all kind of excesses on the people in those areas. That is how the problem has become so difficult to decide whether we talk about the problems which are there between India and Pakistan, or we talk about the problems which are there in Kashmir, or the problems which are there in Palestine. ये सारा हमें जो imperialistic powers है वो हमें दे के गई हैं सारी problems. That is how we find all these things difficult to decide. इंडिया में भी जितनी भी problems हैं, right from जो चाइना के borders पे हमारी problem है, पाकिस्तान के साथ problem है, सारे ब्रिटिशर्स हमको हैंड ओवर करके गए इस तरह से कि हम कभी रिजॉल्व ना कर पाएँ और लड़ते रहे. और ऑल वाइट पीपल इवन इन 2023 देयर पॉलिसीज़ आर सच दैट यू विल नेवर बी एबल टू रिजॉल्व योर इश्यूज़, बिकॉज दे विल टेक दिस साइड और दैट साइड, दोनों कन्फ्लिक्टिंग साइड के साथ हो जाएंगे. इसको भी पैसा देंगे, उसको भी पैसा देंगे, इसको भी हथियार देंगे, उसको भी देंगे, एंड दे विल इंश्योर कि पीपल कीप फाइटिंग. सारी इकॉनमी वेस्टर्न वर्ल्ड की इकॉनमी सिर्फ हथियारों पे चलती है. तो जब दुनिया में लड़ाइयाँ होंगी तभी हथियार बिकेंगे. अगर हमास ने भी इतने रॉकेट दागे तो वो कोई आसमान से तो टपक के आए नहीं थे, उसके बाद कहीं से तो आए. हु प्रोवाइडेड ऑल दैट? तो इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं कि कहाँ से आए. पीपल आर स्पेकुलेटिंग, बट देन देयर इज़ नो कॉन्क्रीट आंसर टू दिस कि इतने रॉकेट्स कहाँ से आ गए उसके पास, राइट? तो हिस्ट्री में इसीलिए मैंने ये मैप यहाँ पे लगवाया सो दैट बहुत सारे लोग चीज़ें समझ लें. और कुछ बहुत मैं एस्टॉनिशिंग चीज़ें बताऊँगा जो मुझे लग रहा है अनस के अलावा किसी को नहीं पता होंगी. ठीक है, ये मैप सबको दिखाई दे रहा है, तो इसको समझ लोगे तो प्रॉब्लम समझने में थोड़ी आसानी होगी. हिस्ट्री तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा. तो ठीक है, देयर आर 2 एरियाज़ विच यू कैन फाइंड. दिस इज़ वेस्ट बैंक, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप. गाज़ा स्ट्रिप तुम देख सकते हो कि बहुत छोटा सा एक स्ट्रिप है गाज़ा लैंड, और ये वेस्ट बैंक है. गाज़ा स्ट्रिप का बॉर्डर उधर इजिप्ट से लगता है. वेस्ट बैंक का बॉर्डर जो है इधर जॉर्डन के साथ लगता है. ठीक है, ऊपर जो गोलन हाइट्स दिखाई दे रहा है इसका बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है. और फिर पैलेस्टीनियन लैंड की हम पूरी बात करें तो लेबनान है. पैलेस्टीनियन लैंड ये समझ लो एक रीजन है जिसमें सारा कुछ है, जिसमें वेस्ट बैंक भी है, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप भी है, जिसमें गोलन हाइट्स भी है, और जिसमें ये हमारा इज़राइल भी. सारा एक ही रीजन है. ठीक है, तो अगेन कमिंग टू दिस होल एरिया, चूँकि जैसे अनस ने भी बताया, दिस एरिया इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द रीज़न बिकॉज इट इज़ द ओरिजिन ऑफ 3 डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इस्लाम का ओरिजिन भी यहीं से है, क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन भी यहीं से है, और ज्यूज़ का या जुडाइज़म का उनका भी जो ओरिजिन है वो यहीं से, राइट? और जिस तरह से हम अपने देश में लड़ते रहते हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, तो यहाँ मंदिर मस्जिद और गिरजा नहीं, क्या है उनका जो ज्यूज़ का, हाँ सिनेगॉग या टेम्पल उनका, तो वो तीनों एक ही जगह पे.
और सबकी जो है वो मतलब एक ही प्रेमिसेस है। सो ऑब्वियस है लड़ाई के सारे चीज़ें मौजूद हैं। और हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम समझें तो हिस्ट्री के हिसाब से इस पूरे एरिया जिसमें इजिप्ट भी है, जिसमें जॉर्डन भी है, इन सारे एरिया में सबसे पहले ऑब्वियसली अगर हम ये देखें कि कौन सा रिलीजन पहले आया, तो जुडाइज़म पहले आया, ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन आए और उसके बाद इस्लाम आया, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इस पूरे एरिया में मुस्लिम्स भी रहते हैं, इस पूरे एरिया में ज्यूज़ भी रहते हैं और क्रिश्चियंस भी इस एरिया में रहते हैं। क्रिश्चियंस हालांकि कम है नंबर में, लेकिन फिर भी हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि रिलीजन के हिसाब से जो डिवीज़न है और हिस्ट्री में जब जब जिस जिस एम्पायर के अंडर में रहा, सपोज़ जितने दिन ओटोमन एम्पायर के अंडर में रहा ये पूरा रीजन, ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो सारा कुछ जितना ये दिखाई दे रहा है सब ओटोमन एम्पायर में था। तो जब ओटोमन एम्पायर के अंडर में रहा तो इस्लाम को प्रमोशन मिला, जब रोमन एम्पायर के अंडर में रहा तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोशन मिला। तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जैसे जैसे एम्पायर्स रही वैसे वैसे अलग अलग रिलीजन फ्लोरिश करते गए। बट देन अगर हम सीधे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ज्यूज़ और मुस्लिम्स ये दोनों का टसल रहा और ये स्प्रेड थे एंटायर एरिया में, जो फाइनली जिसको हम आज इजिप्ट जानते हैं, जॉर्डन जानते हैं, सीरिया जानते हैं, ये सारे एरिया में स्प्रेड थे। लेबनान फॉर इंस्टेंस, अभी तुम्हारी जानकारी के लिए सबको बता देता हूँ, लेबनान इज़ वन कंट्री जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस बैलेंस बना हुआ है बिकॉज ऑफ द नंबर। जहाँ भी नंबर कम या ज़्यादा है वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब फाइनली जो यूरोपियन पावर्स आई सीन में 19th या 20th सेंचुरी ऑनवर्ड, 19th और 20th सेंचुरी, पिछले 200 साल की हम बात करें, तो एवरीबडी नोज़ कि जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो आधी दुनिया पे उसी का कब्ज़ा था। सो और जिस तरह से इंडिया पे ब्रिटेन का लंबा का जो ऑक्यूपेशन रहा, उसी तरह से इजिप्ट पे भी बहुत लंबे समय तक यूके का ऑक्यूपेशन रहा और ये पूरा एरिया उसी के इन्फ्लुएंस में था। और इसमें काफ़ी सारा एरिया, जो हम पैलेस्टीनियन लैंड की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारा एरिया इजिप्ट के पास था, कुछ जॉर्डन के पास था, ठीक है। तो पैलेस्टीन एज वन स्टेट और एज वन एंटिटी कभी नहीं था, ठीक है। पूरा चाहे लैंड की अरब लैंड की अरब लैंड में भी कितने सारे देश हैं आज जो अरब कंट्रीज़ हैं, राइट फ्रॉम यूएई टू सऊदी अरेबिया, सारे देश हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो आज के समय में देश हैं ये पहले कभी नहीं थे, ये पिछले हार्डली 100 ईयर्स के बीच में सारे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बने। बट जो पैलेस्टीनियन एज ए स्टेट एज ए कंट्री कभी नहीं बना। पैलेस्टीन को एज ए स्टेट पहली बार 2012 में एक्नॉलेज किया गया। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म रिकॉग्निशन, इसको एक्नॉलेज किया गया कि पैलेस्टीनियन एक एंटिटी है एज ए स्टेट, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है। रिकॉग्निशन कब होती है और ये एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, क्या फ़र्क है दोनों में, बताओ ना। सर रिकॉग्निशन होता है जब सर दूसरी कंट्रीज से एक बायलैटरल टाइज बना लेती हैं, प्लस सर जब अब तो यूएन है तो यूएन रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको मेंबर स्टेट बना देता है, प्लस सर उससे सर जब आर्म्स बेचेंगे या करेंगे तो सर उसमें वो डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। एनी कंट्री विच इज़ कॉल्ड अ कंट्री with control over a geographical location. For this, it is possible that a certain number of countries recognize that country. जैसे फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश बना, तो वो रिकॉग्निशन चाहिए एंड दैट हैज़ टू बी accepted by the UN then thereafter as a member. हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी पूरी बात सुन लो।
ओके, सो पैलेस्टीन कैसे स्टेट नहीं है, कैसे एक कंट्री नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें. इट्स नॉट ए कंट्री. ये ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन्स होंगे इसको लेके. इट्स नॉट ए कंट्री. नहीं, यूएन का मेंबर है लेकिन कंट्री नहीं है, यही तो बता रहा हूँ ना, इसीलिए समझ लो. प्रॉब्लम यह है कि वो एक कंट्री नहीं है. ठीक है, अब कंट्री नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उसकी कोई सॉवरेन एंटिटी नहीं है दुनिया में. ठीक है, 2012 में UN recognized it as a some status has been given as an observer country or something, not as a full country or a state, right? And there are several countries, again I am not sure of the number, इसलिए वो मैं नहीं बताऊंगा, अपने से कर लेना. But then there's a long list of the countries which have recognized Palestine as a state, but no country has diplomatic relations with Palestine. मतलब वहाँ पे किसी का हाई कमीशन नहीं है, वहाँ पर किसी की एम्बेसी नहीं है, उसकी कहीं पे एम्बेसी नहीं है. एक लिमिटेड प्रेजेंस बहुत सारे देशों ने दी हुई है, बट नॉट लाइक अदर कंट्रीज. तो वो लिमिटेड प्रेजेंस तो इंडिया ने भी दी हुई है पैलेस्टीन को, बट उसका कोई फुल फ्लेजेड कंट्री का शेप नहीं है, वो UN का फुल मेंबर नहीं. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई लेजिटिमेट या इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये एक सारी प्रॉब्लम में ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट. वो उसके पास, पैलेस्टीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, मतलब अपनी आर्मी नहीं है, अपनी एयरफोर्स नहीं है, अपनी नेवी नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं इस तरह का. ठीक है, तो अब मैं 2 ही सालों की बात करूंगा, 48 और 67. तो 48 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया एंड ब्रिटेन वाज वीक, सो इस पूरे एरिया पे ब्रिटेन का कब्जा था. सो ब्रिटेन वांटेड टू विड्रॉ, तो उसने 48 से पहले से ही ब्रिटेन ने, US ने मिल के एक गेम प्लान तैयार किया, और उसके हिसाब से उन्होंने जितने ज्यूज़ थे जो इस पैलेस्टीनियन लैंड में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, चूँकि पिछले 100,000 साल का टर्मोइल रहा पैलेस्टीनियन लैंड में, तो जितने ज्यूज़ थे वो धीरे धीरे इस एरिया से निकल गए, एंड दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो 1000-1500 साल में वहाँ बहुत कम रह गए ज्यूज, सब निकल गए वहाँ से, और ऑब्वियसली जो मुस्लिम्स थे वो वहीं पे रहे, तो उनका नंबर अपने आप कम हो गया, और उनका उस लैंड पे, ज्यूज़ का इस लैंड पे क्लेम भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो चले गए सब छोड़ के. ठीक है, और वो ज़्यादातर यूरोप के अलग अलग देशों में गए, और US में बहुत बड़े नंबर में गए. जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ज्यूज़ की आउटसाइड इज़राइल, वो US में, और US की पूरी पॉलिटिक्स को में ज्यूज सबसे डोमिनेंट फैक्टर है. 45% है, ठीक है, परसेंट. तो US की सारी पॉलिटिक्स ज्यूज के हिसाब से ही तय होती है. ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत क्लेवरली काम किया. तुम लोगों ने वो पढ़ा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस? किस किस ने पढ़ा है? तो बताओ उसमें जो ज्यू कैरेक्टर था कौन था? अरे शर्लॉक ना, क्या नाम था, कौन बताएगा? हाँ, तो पढ़ो, फिर से पढ़ना, शर्लॉक का कैरेक्टर पढ़ना, कि जो क्रिश्चियन मतलब राइटर है, वेस्ट के राइटर हैं, वो ज्यूज़ का कैरेक्टर कैसे पेंट करते हैं. तो ज्यूज़ निकल चले तो गए यूरोप और अमेरिका में, लेकिन ज्यूज़ को कभी भी ये क्रिश्चियंस जो थे वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, मजाक बनाते थे. कंसीडर्ड ए बिजनेस कम्युनिटी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो इस तरह की इमेज उनकी पूरी यूरोप में क्रिएट हुई. ठीक है, तो और ये क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज़ है, माइंड इट, ये यहाँ मुस्लिम वर्सेस ज्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज़ है. तो ये सारे जितने वाइट लोग हैं ये उनको परेशान करते थे, मजाक बनाते थे. फिर जब इनको सबको लगा कि हमारे हाथ से दुनिया निकल रही है 1940 के बाद से, तो इन्होंने सोचा हम अपनी बला दूसरे के सर पे डाल देते हैं.
तो उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि इज़राइल को एज ए कंट्री बना दिया जाए और ज्यूज़ को वहाँ भेज दिया जाए। तो जर्मनी इज़ अगेन वन एग्जाम्पल, ज्यूज़ के साथ क्या किया जर्मनी ने, पता है ना, पढ़ा है समझे ना जर्मनी का। हाँ, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ज्यूज़ को लेके क्या ट्रीटमेंट था यूरोप में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन लोगों ने प्लान किया कि सारे ज्यूज़ को इज़राइल भेज देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये फिर मुसलमानों से लड़ते रहेंगे, ठीक रहेगा। तो उनको सबको धीरे धीरे माइग्रेशन शुरू हुआ ज्यूज़ का फ्रॉम, जो अभी अनस ने बताया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उस एरिया में जाने लगे। और चूंकि वो पूरा एरिया ब्रिटेन के पास था और ब्रिटेन ने उसको एक क्या मैंडेट करके एक पूरा एरिया मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन बनाया हुआ था। तो उस पूरे एरिया को, जबकि वो उस समय इजिप्ट जॉर्डन का पार्ट था, तो उसको एक अलग से डिमार्केट किया उस पूरे एरिया को और ये तय किया कि अब यहाँ पे ज्यूज़ सेटलमेंट बना दिए जाए और ज्यूज़ देश बना दिया जाए। तो जो पैलेस्टीन की पूरी लैंड है, जिसमें आज का इज़राइल तुम्हें दिख रहा है, जिसमें आज का तुम्हें गाज़ा स्ट्रिप दिख रहा है, जिसमें तुम्हें आज का वेस्ट बैंक दिख रहा है, इसको उन्होंने दो भागों में बांटा और आधा कहा कि मुस्लिम्स का और आधा ज्यूज़ का, ठीक है। और बांट के उन्होंने वहाँ ज्यूज़ को बसा दिया और उसको एक कंट्री का नाम दे दिया इज़राइल और सब ने रिकॉग्निशन दे दी एंड इज़राइल इमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड मैप एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ ज्यूज़ इन 1948। लेकिन बाकी जो मुस्लिम्स थे इस पूरे पैलेस्टीनियन एरिया के, उनको इस एरिया में रह गए, उनको एज ए कंट्री कोई they could not emerge as an independent country। तो ये छोटे छोटे एरिया बच गए जिनको एज ए कंट्री, जिनका कोई स्टेटस नहीं था। नहीं तो अगर करना था तो दो कंट्री बना देते, लेकिन उनको उनका कंट्री नहीं मिला पैलेस्टीनियंस को। सो फ्रॉम देयर द मॉडर्न टाइम में प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई कि पैलेस्टीनियंस का कहना ये था कि हमारा होमलैंड कहाँ है एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दैट। तो 48 से अलग अलग लेवल पे प्रॉब्लम फाइट शुरू हुआ। फाइनली द मोस्ट डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस फाइट को आगे बढ़ाया, दैट इज़ नोन एज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। और उसका जो सबसे बड़ा लीडर इमर्ज हुआ वो था यासर अराफात। यासर अराफात, ठीक है। तो उसने, यासर अराफात ने मूवमेंट को यहाँ तक आगे बढ़ाया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था यासर अराफात ने जिसको मीट किया वो ये था, टू मेक दिस अंडरस्टैंडेबल टू द वर्ल्ड दैट व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। जैसे आज भी सब लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम ही किसी को नहीं पता। तो उसने पहला काम ये किया कि पूरी दुनिया में घूम घूम के सारे देशों में जाके वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट से मिलके ये समझाया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमें वर्ल्ड की सपोर्ट की ज़रूरत है टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इंडिया वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज़ जिसने यासर अराफात और PLO को सारा सपोर्ट दिया। नहीं, इंदिरा गांधी, मेनली इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वो उस सपोर्ट से भी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर क्या हुआ कि देयर वर पीपल इन पैलेस्टीनियन एरिया जिनको ये लगता था कि यासर अराफात के तरीके से वी विल नेवर बी एबल टू अचीव आवर गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कंट्री फॉर पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, ठीक है। अगेन जो इंडिया में है, जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स के बीच की लड़ाई, मॉडरेट तरीके से कि गांधी जी वाले तरीके से नहीं होगा काम, सुभाष चंद्र बोस वाले तरीके से होगा। तो यासर अराफात को के ख़िलाफ़ काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स आई कि ये तो लड़ते रह जाएंगे और कभी हमारा पैलेस्टीनियन कंट्री तो बनेगा नहीं। देन जो हार्ड लाइनर्स थे, दे कैप्चर्ड द पावर मीन्स दे केम इन द प्रोमिनेंस एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन जो रेडिकल था दैट वी नो एज हमास। तो इन दोनों जो एरियाज़ हैं, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप में मेनली हमास का डोमिनेंस हो गया। PLO वॉज शोन थ्रोन टू द वॉल, कंट्रोल जो था वो उनके हाथ में आ गया। लेकिन वेस्ट बैंक में
PLO रिमेन्ड डोमिनेंट। तो अब दो एरिया थे, दोनों में अलग अलग लोग डोमिनेंट थे, एक में PLO का डोमिनेशन था, एक में हमास का डोमिनेशन था। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद कि 1967 में 4-5 अरब कंट्रीज, राइट फ्रॉम इजिप्ट टू जॉर्डन टू सीरिया, इन सब ने प्लान किया, एंड दीज पैलेस्टीनियन एरियाज़, इन सब ने मिलके प्लान किया कि इज़राइल पे अटैक करते हैं और हम एक अलग से पैलेस्टीनियन कंट्री को बना देते हैं। किम प्योंग वॉर नहीं, 6 डे अक्टूबर वॉर और योम नहीं, क्या नाम थे? हाँ, योम यानी डे 6 डे। ठीक है, तो इन्होंने सबने मिलके इजराइल पे अटैक कर दिया। एंड माइंड इट, जिस समय ये लड़ाई हुई 67 की, उस समय ये गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट का हिस्सा था, ये इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं था, ये इजिप्ट का हिस्सा था, और वेस्ट बैंक जो था वो जॉर्डन का हिस्सा था। ठीक है, तो इन्होंने लड़ाई की कि इजराइल को डिफीट करके और हम छीन लें लैंड को, और हो गया उल्टा। ठीक है, इजराइल वन द वॉर, और जब तक 6 दिन में सीज फायर होता उतने समय में इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप को इजिप्ट से छीन लिया, और वेस्ट बैंक को इससे जॉर्डन से छीन लिया, और उधर गोलन हाइट्स को सीरिया से छीन लिया। फिर इन अरब कंट्रीज़ को लगा ये तो हमारा ही एरिया लूज़ हो रहा है, देन फिर UN बीच में आया, सीज फायर हो गया। तो 67 के बाद से इजराइल ने इन 3 एरियाज़ पे अनऑथराइज्ड कब्जा किया हुआ है। वॉर में जीता हुआ हिस्सा इज़ नॉट एनी कंट्रीज लेजिटिमेट राइट टू हैव दैट टेरिटरी। ये तो उसी तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और हम ईस्ट पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते, कहिए अब हमारा हिस्सा है। इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया बांग्लादेश को। इन्होंने तीनों एरियाज़ पे कब्जा कर लिया इजराइल ने। अब लड़ाई दूसरे लेवल पे चली गई। अब सारी पैलेस्टीनियंस की जो लड़ाई है इन तीनों एरियाज़ को इजराइल से वापस लेने और अपना एक अलग देश बनाने की है। ठीक है, तो अभी लड़ाई क्या है कि पैलेस्टीनियंस की लड़ाई क्या है कि उनके घर में किसी का कब्जा है, वो उससे कह रहे हैं कि हमारे घर से बाहर निकलो। ठीक है, और इजराइल ने कब्जा किया, उसका क्या मतलब है वो बताओ। उस कब्जे का मतलब क्या है? कब्जे का मतलब ये है कि जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये गाज़ा स्ट्रिप पे ऑक्यूपेशन इजराइल का है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे समझौते हुए हैं हिस्ट्री में। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 67 के बाद तो पूरा कब्जा था, धीरे धीरे इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने क्या किया, जैसे ही 67 में जीता इन एरियाज़ को, यहाँ पे ज्यूइश सेटलमेंट बना दिए, बस्तियाँ बना दी, और इजराइल से ला के लोग बसा दिए वहाँ पे कि वापस कभी करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ ज्यूज ही रह रहे होंगे। तो उसने 20-25 साल तक ये किया, और UN कुछ नहीं कर पाया, जो मैं कह रहा था, क्योंकि UN मतलब US, तो जो US ने चाहा वही UN ने एंडोर्स कर दिया। तो प्रैक्टिकली कब्जा हुए वाले एरियाज़ पे ज्यूज रहने लगे, और बाकी जो बचा हुआ एरिया में पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। फिर जब बहुत सारे समझौते हुए, US मीडिएटेड पीस, तो फाइनली एक समझौता हुआ जिसके हिसाब से ये तय हुआ कि जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है इन दोनों एरियाज़ में, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम पैलेस्टीनियन को दे देते हैं। तो ओवरऑल कब्ज़ा इजराइल का है, और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे हम इंडिया में कहते हैं ऑटोनॉमस यूनिट्स बना देते हैं, ऑटोनॉमस काउंसिल्स बना देते हैं, तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियंस का है। तो उसके लिए इलेक्शंस भी होते हैं वहाँ। तो अभी इलेक्शंस में PLO चूँकि पीछे चला गया, तो इलेक्शंस में हमास ही जीतता है, और हमास ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमास चलाता है वहाँ पे, और वेस्ट बैंक में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन PLO चलाता है। फिर इजराइल क्या करता है? इजराइल ने ये सारे एरियाज़ को
तार लगाया हुआ है, सब पे वो फेंसिंग है, ज़्यादातर एरियाज़ में कहीं पे चेक पोस्ट हैं, सारा है। तो गाज़ा स्ट्रिप में कोई जाएगा और गाज़ा स्ट्रिप से इधर इजराइल में आएगा, सारे बैरियर्स क्रॉस करके ही आएगा, कोई रास्ता नहीं, ठीक है। और अभी भी क्या होता है, बहुत सारे लोग गाज़ा स्ट्रिप में, चूंकि उन्होंने सेटलमेंट बना दिए, तो गाज़ा स्ट्रिप में तमाम लोग हैं जिसमें ज्यूज़ ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स हैं जो नौकरी इजराइल में करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट बनाया तो जो इजराइल में रहने वाला जू था वो गाज़ा स्ट्रिप में रहने लगा, नौकरी इधर कर रहा है किसी शहर में आके, तो वो रोज़ आते हैं जाते हैं, या मुस्लिम्स भी जो इधर पैलेस्टीनियंस हैं वो कहीं वहाँ जॉब करते हैं, तो वो चेक पोस्ट हैं, वहाँ से जाएंगे फिर लौट के आएंगे, एक एक चीज़ का काउंट है इजराइल के पास, ठीक है। सेम इज़ विद वेस्ट बैंक। तो इससे क्या है कि अभी आज के समय में इस पूरे एरिया पे का जो बिजली सप्लाई है वो इजराइल के हाथ में है, पानी की सप्लाई इजराइल के हाथ में है, जो मेडिसिन्स की सप्लाई जो भी है, जो भी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सारा इधर इजराइल से गाज़ा स्ट्रिप जाती है, जिसको इजराइल परमिट करता है वो जाते हैं, तो इजराइल उसको कंट्रोल करता है। जैसे लड़ाई शुरू होने से पहले 4 घंटे बिजली मिलती है गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को 24 घंटे में, अब उसने पूरी बंद कर दी, ठीक है, मेडिसिन्स बंद कर दी, सब बंद कर दिया। सो इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी, कि लोगों के पास पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया है पीने का, लोगों के पास बिजली नहीं है, तो बिजली नहीं है तो आप समझ सकते हैं बिजली के बिना क्या होगा। अच्छा, हॉस्पिटल्स जितने हैं, हॉस्पिटल्स किसी में भी अच्छी एम्यूनिटीज़ पहले से नहीं है, जो हैं इतने लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता क्योंकि बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन ए वे इजराइल हैज़ क्रिएटेड ए सिचुएशन जहाँ पर लाखों लोग मारे जाएंगे, मर ही रहे हैं रोज़, बट वर्ल्ड इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड फॉर दैट। दुनिया को परेशानी है कि हमास ने आतंकवादी हमला क्यों किया। तो यहाँ पे आतंकवाद क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है, अपनी अपनी कोशिश तुम सारे लोग करना समझने के लिए। क्या हमास ने रॉकेट दागे इजराइल पे वो आतंकवाद है, या जो आप लोगों को वो सारी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि कॉमन लोग मरते जाएं, कि वो आतंकवाद है? हाँ, लेकिन दुनिया एक ही को आतंकवाद मान रही है, हमास के एक्शन को तो आतंकवाद मान रही है। आज के पिछले 48 के बाद से आज तक अगर पैलेस्टीन में किसी ने किसी बात पे विरोध किया इजराइल का, उसको उठा ले जाते हैं, इजराइल की जेल में बंद कर देते हैं। अभी मेन मुद्दा क्या आ रहा है, सारा मीडिया लगा हुआ है कि हमास ने जो होस्टेज रखे हैं इजराइल के लोग, उनको छोड़ा जाए, और इजराइल ने तो 85 साल से हज़ारों लोगों को जेल में रखा हुआ है, उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी दुनिया में कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे देश एक हैं, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सब मिले हुए हैं, सब एक साथ आ गए। तो वो टेरर नहीं दिखाई देता। टेरर के भी बहुत तरह के प्रकार हैं, जो दुनिया समझाती है हम सबको कि ये टेरर है, कि गोली चला दी तो टेरर है, आप बिना गोली चलाए आदमी को मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये, हाँ बोलो। ये तो रिपोर्टेड है, बट यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी पैलेस्टीन ज़्यादा जाएंगे ही ना। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मैं जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ। तो टेररिज्म को लेके वैसे बता दूँ, टेररिज्म को लेके पूरी दुनिया में ये डिबेट है कि टेररिज्म क्या है, और अभी तक टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं बन पाई है। यूएन में कई बार कोशिश हुई है, बट हर कंट्री की अपनी ओपिनियन है कि हाउ टू डिफाइन टेररिज्म, एंड टिल दिस डेट देयर इज़ नो
definition of terrorism which is recognized as a official definition either at the UN level या किसी अपने हर देश terrorism को अपने अपने ढंग से define करता है. सर एक रिकमेंडेशन देनी थी जो आप बात करें वो इतनी ब्रॉडली हम बात नहीं कर पाएंगे. पल्ली शर्मा एंकर शी हैज कवर्ड दिस एस्पेक्ट ओनली जैसा ह्यूमैनिटेरियन और टेररिज्म की बात करें तो शी रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर ओनली. तो इफ पॉसिबल अगर टाइम मिल जाए तो वो स्टोरी अगर ये देख लेंगे तो शायद गिवन एक क्लैरिटी. देख लो अब को ये सही है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया. बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी कोशिश हैं इंडियन मीडिया में जो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव से दिखाएं. 90% मीडिया पूरा फॉल्स प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए मुश्किल है सभी के लिए समझने में इन चीज़ों को. हाँ, सबका बायस्ड है. इवन राजदीप सरदेसाई का वीडियो देख रहा था, कंप्लीटली बायस्ड, जहां पर हर देश, हर चैनल, हर सरकार हमास की वायलेंस को कंडेम कर रहे हैं, इजराइल की वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं. हाँ, रवीश का किसने देखा वीडियो? मैंने भेजा तो था सबको. हाँ. what Hamas is doing is both children and women को भी abduct कर रहा है, kidnap कर रहा है. उसके बाद इजराइल ने उनका सारा सप्लाई और जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो बंद कर दी. तो जब लाइक ऐसा होगा तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स को तो ऐसे ठीक है, ठीक देयर है, इज किडनैपिंग, देयर इज abducting, देयर इज ठीक है. इसके ठीक है, समझ गया. दो एस्पेक्ट हैं इसके. नंबर 1 कि जो उन्होंने एब्डक्शन किया है वो किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो होस्टेज तुमने रखे हैं छोड़ दो, हम तुम्हारे छोड़ देंगे. ठीक है. जो हज़ारों लोग इजराइल ने पैलेस्टीन के अपनी जेल में बंद किए हुए हैं तो उन्होंने होस्टेज कर दिया है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, हम तुम्हारे लोगों को छोड़ देंगे. अच्छा, दूसरी बात, सब लोग मीडिया की पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ समझ लो. कुछ कुछ लोगों से कभी कभी बात होती है. एक शब्द है जिसको तुमने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉर. ठीक है. इंफॉर्मेशन वॉर में क्या होता है कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, मीडिया का सहारा लेके उसको एस्टेब्लिश किया जाता है और अपनी गलतियों को छुपा लिया जाता है. इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो भी पढ़ना और समझना चाहे. वो इराक वॉर. यूएस ने और यूके ने मिलके एक पूरी दुनिया में नैरेटिव क्रिएट किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया के मीडिया में चलाया. और जो इंडिया जैसे देश है उन्होंने इसलिए चलाया कि यूके भी कह रहा है, यूएस भी कह रहा है, CNN भी दिखा रहा है, तो इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी चलाया. पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये बहुत ख़राब आदमी है, इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है. जब पूरी दुनिया ने ये मान लिया, उसके बाद अमेरिका ने अपने एलाइज के साथ मिलकर अटैक कर दिया इराक पे. ठीक है. सद्दाम हुसैन को अप्रूव कर दिया, इराक पे कब्जा कर लिया. फिर बाद में पूछा गया कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, है ही नहीं. अब समझ में आ गई बात? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन वही है जो दे रहा है ना मीडिया, और तो कोई है नहीं सूचना. कहां से लाओगे सूचना? अच्छा, तो अगर मतलब इजराइल ने पैलेस्टीन के लोगों को जेलों में रखा है और उसकी फुटेज नहीं मिले तो हम मान लें कुछ नहीं है. कैसे? वही तो कह रहा हूं. वो फुटेज पूरा जो मीडिया है वेस्टर्न, वो फुटेज पे ही आगे चला रहा है ना, उसी से तो प्रोपेगेंडा सेट होगा ना. लेकिन जो इजराइल ने पकड़े हुए हैं उनकी फुटेज है ही नहीं किसी के पास. इसका मतलब इजराइल के पास नहीं है. वो तो कह रहा है पकड़े हैं हमने. तो आप जिसका कब्जा है इंफॉर्मेशन पे वही अपनी चलाएगा. तो ये इराक वॉर तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका. इराक के वॉर के बारे में पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है? इसने ही पढ़ा. ये अभिषेक ही पढ़ता है. अब तुम आ गए पढ़ने वाले. हाँ, अरे 12th वाले चैप्टर से थोड़ी काम होगा, डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा. कहा कि हमारे पास फुटेज है वुमेन्स को मारने की. सर, जो पिछले साल रमजान के अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी के सर पे गोलियां मार दी थी इजराइल ने, ये फुटेज थी. उसके बारे में वो नहीं, वेस्टर्न मीडिया दिखाएगा नहीं, और वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा तो हम भी नहीं दिखाएंगे. उन हॉस्टेज को आज सुबह छोड़ दिया.
रखा गया था। जो फुटेज जो मीडिया में चल रही है वो हमें नहीं पता कहाँ की है, वो इस साल की है भी नहीं, ये भी नहीं पता। एग्जैक्टली तो ये खतरे हैं एज ए मीडिया स्टूडेंट, तुम्हें समझ ये खतरे हैं कि तुम यू विल बी ल्योर्ड बाय वॉट एवर यू आर सीइंग। तुम्हें तो पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे क्या है खेल। ये सारा जो खेल पूरी दुनिया में हो रहा है 20 साल से, सारा यूएस और यूके मिलके खेल करते हैं। ये 48 में भी इजराइल पैलेस्टीन झगड़ा वो बना के गए झगड़ा, 47 में इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हमें देके गए कि हम और 100-200 साल तक लड़ते ही रहे। ये सारा इन्हीं लोगों का खेल है। आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि वो छोड़ के ऐसा गए लड़ने के लिए हमें। यहाँ वो 48 में इजराइल में छोड़ के गए कि लड़ते रहेंगे, लोग लड़ते रहेंगे, उनके हथियार बिकते रहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। और मीडिया पे, इंफॉर्मेशन पे आज भी वेस्ट का पूरा कब्जा है। हम वही देखते हैं, वही पढ़ते हैं जो वेस्ट चाहता है। सर ये भी ना इजराइल सर यूएस का सर वहाँ पे वैसल भी है। हाँ चलो, ये जो कह रहे हैं उसका भी मैं बता देता हूँ, वो शायद कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, आज भी पूरी दुनिया को आपस में बांटा हुआ है इनडायरेक्टली। मतलब वैसे सब अलग अलग देश हैं, हम भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन बांटा हुआ है। बांटने का मतलब क्या हुआ, कुछ एरिया ऐसे हैं जो 4-5 लोकेशंस हैं दुनिया की जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस के हिसाब से। तो कहीं पे आपको यूएस की नेवी परमानेंटली स्टेशनड है, कहीं पे आपको यूके की आर्मी ये परमानेंटली स्टेशनड है, वहीं रहती हैं। जैसे कभी ज़रूरत हो, जैसे जब बांग्लादेश का ये पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई तो इंडियन ओशन में यूएस ने अपना 7th फ्लीट रखा हुआ था। तो उन्होंने भारत को धमकी दी कि अगर उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, कि अगर ईस्ट पाकिस्तान में हमारी आर्मी आगे बढ़ी तो हम 7th फ्लीट को भेज देंगे। उन्हें यूएस से नहीं भेजना है कि 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, वहीं रखा हुआ है। तो वो आ गया यूएस फ्लीट, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ गया बे ऑफ बंगाल में। तब जाके रूस ने, यूएसएसआर ने अमेरिका से कहा कि अगर तुम्हारा 7th फ्लीट आया तो हम इंडिया की साइड में आ जाएंगे। दैट इज़ हाउ दैट कुड बी अवर्टेड। तो ये आज भी 21वीं शताब्दी में भी ये सारी जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये पूरे दुनिया में कहीं पे अपनी नेवी, कहीं पे अपनी आर्मी रखी हुई है। कोई बोलेगा तो मारेंगे। अब कुवैत में, जब कुवैत इराक का झगड़ा हुआ, कुवैत में उनकी प्रेजेंस है यूएस की। इमीडिएटली 2-3-4 घंटे में कहीं भी मिडिल ईस्ट में घुस जाएंगे। तो प्रॉब्लम कहीं और है, हम लोग कहीं और लड़ते रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम जितना समझ लोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ और कैसे हैं। अच्छा, और इस पर्टिकुलर केस में बता देता हूँ, ये जो एक एरिया है जो दिख रहा है तुम्हें, ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, ये सीरिया का एरिया था। इस पर कब्जा कर लिया परमानेंट इजराइल ने और एनेक्स कर लिया है। एनेक्स समझते हो, उसका विलय कर लिया है, मर्ज कर लिया अपनी टेरिटरी में। नाउ इट्स इजराइल। ये अब वो कहता है ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं है, ये हमारा ही एनेक्स कर लिया है। ठीक है, और सारा यूएन बैठा हुआ है 67 से लेके अभी तक। क्या कर रहा है? जिस पे पावर है, हम यूएस नहीं है ना, हम यूएस के बराबर पावरफुल होंगे तो करेंगे। तो कब्जा किया हुआ है ना, तो सामने को नक्शा इसीलिए लगाया मैंने, तुम समझ पाओ देख के। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। इस सहारे आप दुनिया की तमाम चीजें समझ जाएंगे जितनी मैंने उठाई। ये एक एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया है 49 में जब इजराइल बना था तब ये तय हुआ था कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच में एक कनेक्शन चाहिए, क्योंकि ये पूरा एरिया में तो इजराइल बन गया सारा, ये सारा इजराइल है। तो यहाँ से यहाँ कोई कैसे जाएगा इन दो जगहों के बीच में? तो एक सेफ पैसेज दिया गया था कि यहाँ से पैलेस्टीनियंस गाजा से वेस्ट बैंक से गाजा जा सकते हैं। इसको इजराइल ने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये एक संदूक में यहाँ बंद है, वो वहाँ बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो पूरा का पूरा जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, यही एक तरह से जेल की तरह से हैं एंटायर एरिया।
जो इजराइल की मर्जी पे रह रहे हैं लोग। जो इजराइल चाहेगा वही होगा। उनको खाना चाहते हैं मिलेगा, तो इजराइल चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा नहीं मिलेगा। पानी इजराइल चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। इसके बारे में कहीं पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा ना, क्योंकि कोई मीडिया दिखाएगा नहीं तुम्हें। सर अदर कंट्रीज सपोर्ट ये सब चीजें, ये सारी चीजें तो आने की अब बस लड़ाई दिखा रही है। कौन कंट्रीज नहीं दिखाएंगे ना, होना चाहिए ना। कौन बताएगा तुम्हें? मैंने इसलिए तय किया बता दो, कौन कोई बताएगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर क्या ये बात कॉमनर्स की क्या फॉल्ट है नहीं, बिल्कुल फॉल्ट नहीं। मैं कहाँ, तुम्हारी फॉल्ट थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें। ये है कि कॉमनर्स क्यों इतना सफर कर रहे हैं? हाँ, इसका जो इसने कहा था वो एक, जब मैंने कहा था एक चीज़ रह गई, याद दिला दिया तुमने जवाब। जो इसने कहा था कि वो बच्चों को और उनको क्यों रखा गया है, उसका जवाब ये है कि हमास ने होस्टेज बनाया ना, ठीक है? तुम कॉमन सिटीजन को क्यों मार रहे हो? बम तो पैलेस्टीन में गिरा रहे हो। जो ये कह रही कॉमन लोग ही तो मारे जा रहे हैं, उन बिल्डिंग्स में रहने वाले। तो हमास का क्या बिगड़ रहा है? हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने इजराइल के लोगों को होस्टेज बना दिया, ठीक? तो उसके जवाब में इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर बम गिरा रहा है इजराइल। इज इट जस्टिफाइड? ये टेरर नहीं है। कहीं मीडिया में देखा जो तुम्हें बताया जाए ये टेररिज्म कर रहा है इजराइल? नहीं, दोनों साइड नहीं है, लड़ाई है हमास वर्सेस इजराइल। और मार किसको रहे हैं? कॉमन सिटीजन को। तो दोनों तरफ कहाँ हुए? कॉमन आदमी की लड़ाई नहीं है। और एक बात और, पैलेस्टीन के, मैं कोई मेरे पास सर्वे की रिपोर्ट नहीं है, बट कम से कम आधे लोग ऐसे हैं पैलेस्टीन एरिया के जो हमास को सपोर्ट नहीं करते। हमास इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन, इट्स ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लोग नहीं है उसके साथ, लेकिन इजराइल तो उन्हीं लोगों को मार रहा है। तो ये एस्पेक्ट किसी ने तुम्हें बताया? उनको क्यों मार रहा है कॉमन आदमी को? इस पर दुनिया का मीडिया बोल ही नहीं रहा, ना इंडिया का मीडिया बोलेगा। और जो बिल्डिंग वहाँ पर गिराई जा रही है वो भी उसे ऐसे शोकेस कर रही है मीडिया की वो हमास के सेंटर है जहाँ पे वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। मतलब सारा हमास है ही नहीं, तुम पढ़ लो पूरा। हमास का तो समर्थन ही नहीं है, ज़्यादातर समर्थन नहीं है। लेकिन मीडिया उसे ऐसे ही शोकेस कर रही है नहीं, लेकिन तब कुछ ऐसे शोकेस कर रहे हैं कि उनके सेंटर। ऐसा नहीं हो सकता ना, कैसे होगा? तमाम लोग हैं जो वायलेंस को नहीं सपोर्ट करते, वो नहीं है हमास के साथ, लेकिन सफ़र वही लोग कर रहे हैं। हमास को थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो एक तो ये जो कॉरिडोर बंद किया है, दिस कैन टेल यू कि कैसे एनक्लोजर्स में बंद कर दिया है पैलेस्टीनियंस को मरने के लिए। और पूरी दुनिया आंख बंद करके देख रही है कि कोई नहीं बोल रहा। ओनली इंडिया में सिर्फ कांग्रेस ने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक रेजोल्यूशन पास किया पैलेस्टीन की बात करते हुए, तो सारा मीडिया कांग्रेस को गाली देने में लग गया। अगर तुमने किसी ने भी पढ़ा हो तो, किसी ने पढ़ा? तो कांग्रेस के पीछे लग गए कि ये देखो टेरर का समर्थन कर रहे हैं। मतलब पैलेस्टीन के कॉज की बात, पैलेस्टीन में लोग मर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, एक साइड की बात हो रही। इंडिया का क्या रिलेशन है इजराइल से? बताओ। सर इंडिया विशेष बहुत न्यूट्रल रहा है बिकॉज कोई डिफरेंट बैंकिंग नहीं ले रहा है। न्यूट्रल रहे। बट इस टाइम नहीं है, इस टाइम नहीं है। सर कॉरिडोर बन रहा है, सपोर्टेड उसके लिए। सर मैं ये बता रही थी कि अभी इंडिया इज सपोर्टिंग इजराइल और सर जब G20 समिट हुआ था अभी, तब वहाँ पे इसराइल के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, मिडिल ईस्ट ट्रेड रूट का। तो अगर अभी ये वॉर चल रहा है ना, तो मतलब इंडिया के साथ जो ट्रीटी हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि इस वॉर की वजह से कोई भी कंट्री हुए कुछ भी वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगी या फिर इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो जो वो ट्रीटी साइन हुई थी वो अभी एक्शन में नहीं आ पाई। ठीक है, इंडिया का मैं बता, इंडिया वर्सेस मिडिल ईस्ट बता देता हूँ। इंडिया का जो रिलेशनशिप है मिडिल ईस्ट से, उसके बहुत सारी लेयर्स हैं। पहला तो ये है कि जोग्राफिकली हमारे पड़ोस में है सारी चीज़ें। अगर पाकिस्तान नहीं होता बीच में, तो जब तक नहीं था, तो इंडिया का लैंड रूट है सारे मिडिल ईस्ट से, ईरान से लेके सब बाई रोड सारा रास्ता है, ठीक है?
कल्चरली भी हमारे बहुत क्लोज है पूरा मिडिल ईस्ट। इसके अलावा चूँकि हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इंडियंस मिडिल ईस्ट में हमेशा से बहुत ज़्यादा थे, आज भी है। तो आज भी एक अभी रफ एस्टिमेट के हिसाब से 85 लाख इंडियंस हैं जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, जिसमें मेनली कतर में है, ओमान में है, ईरान में भी है, यूएई में है, सऊदी में है, सारे देशों में इंडियंस हैं। तो लेकिन फिर भी जैसे ही हमास का हमला हुआ, इंडिया सबसे पहला ट्वीट आया पीएमओ से, तो उन्होंने इसको इजराइल को सपोर्ट किया। ठीक है, ये डिपार्चर है इंडिया की जो पॉलिसी है 1947 से लेके अभी तक, ये मोटे तौर पे प्रो पैलेस्टीन रही है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि हमारी प्रॉक्सिमिटी भी है, हमारे लोग भी वहाँ रहते हैं, इतने लोग नौकरी भी करते हैं, अदरवाइज तो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। तो इंडिया की हमेशा से पीएलओ को, जैसे बताया, पीएलओ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दुनिया में इंडिया नहीं किया, तो इंडिया हमेशा सपोर्ट में रहा है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, द पॉलिसी हैज़ चेंज्ड। इसका जवाब कौन देगा, बताओ क्यों चेंज हुई? तुम मुस्करा क्या रहे, जवाब दो, आशुतोष को दो। हाँ सर, एक सिचुएशन ये थी जब इंडिया की चाइना के साथ एक वॉरलाइक सिचुएशन थी, हाँ। तब इजराइल ने जो है इंडिया को सपोर्ट किया था उस टाइम पे। हाँ तो इस टाइम पे भी इंडिया उस चीज को एक रिवर्ट बैक कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों राइट विंग है, दोनों गवर्नमेंट, इजराइल की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट दोनों राइट विंग है, इसलिए दोनों के क्लोज रिलेशन। अब राइट लेफ्ट जो लोग समझते होंगे वो समझ पाएंगे। कितने लोग इसकी बात को समझे, आशुतोष की बात को? बताओ क्या है? काइंड ऑफ सर मोदी की सरकार की तरह है सर, वो दोनों राइट विंग ही हैं, प्लस सर वो मुस्लिम्स को मतलब मुस्लिम के अगेंस्ट बोल के वो सर वोट लेते हैं सर। वैसे ही वो इजराइल के अंदर कहा जाता है कि जूस के और हिंदूज की हिस्ट्री सेम है, क्योंकि दोनों को परसिक्यूट किया गया है। बट सर ये जूस को तो मुस्लिम्स ने बचाया था रोमन से, तो वो भूल जाते हैं। तो सर ठीक है, काइंड ऑफ सर सेम आइडियोलॉजी है। ठीक है, परफेक्ट। राइट, बड़ी अच्छी यार तुम्हारी नॉलेज है। तो ये बहुत रेयर है इस तरह की समझ लोगों के पास। तो जैसे आशुतोष ने भी बताया, तो जो अगर बहुत ज़्यादा मैं राइट लेफ्ट में नहीं जाऊँगा, बट क्या है कि अगर राइट लेफ्ट के हिसाब से मैं बताऊँ तो इंडिया में जैसे इसने कहा कि राइट विंग गवर्नमेंट है, और इज़राइल में भी राइट विंग गवर्नमेंट है, बल्कि फार राइट है। और जो नेतन्याहू है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, अगर समझ पाएंगे तो समझ पाओ तुम लोग जो लोग फॉलो करते हो। जो इसने कहा कि किसने कहा कि जो मोदी की तरह है, तुमने कहा, इसने कहा? हाँ हाँ हाँ, हूबहू कॉपी है। ट्रम्प भी नहीं, नेतन्याहू बहुत आगे है, बिल्कुल कॉपी है। नेतन्याहू ने क्या किया, पिछले 4 इलेक्शंस में वो जीतता नहीं है, बट जोड़ तोड़ करके सरकार बनाता है। ठीक है, और अपोजिशन के लोग तोड़ ताड़ के अपनी सिंपल मेजॉरिटी 50% क्रॉस करता है। और कई बार ऐसा हुआ, हार गया, फिर किसी की सरकार नहीं हुई, फिर चुनाव हुआ, और नेतन्याहू को इजराइल के अंदर सपोर्ट नहीं है ज़्यादा एज ए पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, दिस इज़ 1 2। फिर अभी जो है वो उसका पूरा, जब से वो पावर में आया, सबसे वीक पीरियड चल रहा है पिछले 2 साल से नेतन्याहू का, और वो परेशान है कि कैसे कंसोलिडेट करे अपनी पावर को। तो उसने 2 बड़े काम किए। अब अपने आप रिलेशन इंडिया से खुद जोड़ लेना। 2 बड़े काम किए जो तुम्हें किसी को भी नहीं पता हो, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। हाँ तो पता है, बताओ। अच्छा बताओ। क्या बात है। और हाँ ठीक है, तो उसने 2 बड़े काम किए नेतन्याहू ने कि कब्ज़ा हमेशा बना रहे, प्रॉब्लम ना आए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया। ठीक है, अब इंडिया से जोड़ लो अपने आप ही। अभी जो उसने किया, हम वो 2 साल बाद होते हुए देखेंगे, 26-27 तक हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में भी। दूसरा उसने काम क्या किया कि जो आशुतोष ने बताया कि सारी जुडिशरी की पावर्स छीन ली।
जिससे कि उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, सीरियस करप्शन के केसेस चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो एडवर्स फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को ही कंट्रोल कर लिया, जो हमारे यहाँ शुरू हो चुका है और धीरे धीरे हम और देखेंगे। अभी नहीं, अपने आप समझो, मैं तो तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ। अरे तुम्हारे सामने तो हो रहा है, ये तो फैक्ट है, जो उसने बताया फैक्ट है ना ये, तो ये हार्ड फैक्ट है, हार्ड फैक्ट के आधार पे अपने आप एनालाइज करो। इंडिया में नहीं हो सकता सर, क्योंकि अरे हो मुझे, मैं चलो वो उस डिबेट में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं इसी पे रहना चाह रहा हूँ, वो तो कंपैरिजन में आ गया। और दूसरा एक, यहाँ मैं इस पे ही फोकस करते हुए बता दे रहा हूँ एक चीज़ और, जो दुनिया में जितनी बड़ी पावर्स होती हैं, जितने बड़े बड़े स्टेट्समैन होते हैं, जब भी वीक होते हैं तो लड़ाई होती है, उसके बाद वो दैट फाइनली रिजल्ट्स इनटू वॉर। जब भी कोई एक वीक होता है और उसका दूसरा भी, वो आपस में समझौता करके लड़ते हैं। ये 2000 साल 3000 साल से ऐसे ही चल रही है दुनिया, इसमें कोई एक देश की मैं आलोचना नहीं कर रहा, दुनिया चलती है ऐसे ही कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अब क्या हुआ, अभी जिस 6 दिन के अंदर क्या हुआ, तो वो पता, 6 दिन के अंदर क्या हुआ इजराइल की पॉलिटिक्स में, बताओ। हाँ, अभी ये 6 दिन में क्या हुआ? सारे पॉलिटिशियन और सेंटर लेफ्ट के सारे यूनाइट हो गए अगेंस्ट द पैलेस्टीन। सारे जितने नेतन्याहू के अपोजिशन में थे लीडर्स और पार्टीज, सब नेतन्याहू के सपोर्ट में आ गई। क्यों? क्योंकि इजराइल एज ए कंट्री की बात है, फिर राइट लेफ्ट की बात नहीं है। काम हो गया नेतन्याहू का, समझ में आ रही है? नहीं, मुश्किल है थोड़ा। हाँ, दूसरा एक और सवाल, जिस तरह से गाजा स्ट्रिप को एनसर्किल किया हुआ है इजराइल ने, रॉकेट कहां से आए? आए किस रास्ते से, कहां से आए? नहीं, इजिप्ट से तो नहीं है। नहीं, इजिप्ट ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर है, वो खुला हुआ है, सारी इजराइल की फौज बैठी हुई है वहां। ये सारे रास्ते पे, यहां पे इजराइल की फौज है, ये इजराइल का कब्जा है। कहां से आ गए बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी, कहां से आ गए? अरे कैसे आ गए? मेडिटेरियन सी से भी। मिलिट्री तो इजराइल की है, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने चारों तरफ से सब लगाई हुई हैं, तो कहां से घुस गए इतने रॉकेट? हाँ, चलो ठीक है, ये बहुत सिंपल है, अपने आप समझो। हमास को पीएलओ के खिलाफ खड़ा करने का काम इजराइल ने किया है हमेशा से, इट्स ए नोन फैक्ट। अभी नहीं दिखा रहे किसी को, अभी तो तुम्हारी जनरेशन को पता नहीं है, तो बनाते रहो, सारा मीडिया लग के उल्लू बनाता रहेगा। पीएलओ के खिलाफ खड़ा करना था किसी को। यासर अराफात का नाम नोट करके पढ़ना। यासर अराफात को वीक करने के लिए इन्होंने क्या किया यूएस ने और इजराइल ने, पढ़ना, गूगल करोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि क्या करती हैं वेस्टर्न पावर से। उसके आखिरी समय में उसको बंद कर दिया, उसकी जान बचाने के लिए वो बंकर में बैठा रहा, सालों तक बंकर से नहीं निकलने दिया उसको, और इस बीच में हमास को प्रमोट कर दिया। क्योंकि पीएलओ मॉडरेट था, वो लड़ता नहीं था, तो जब लड़ेंगे तभी काम होगा ना। जब 67 की लड़ाई हुई, इजराइल ने कब्जा कर लिया, फिर से लड़ाई हुई, फिर से और कब्जा करेंगे और परेशान करेंगे। लड़ाई ही नहीं होगी, पीस होगा तो क्या करेंगे आप? तो लड़ाई करवानी है, तभी तो काम होगा, नहीं कैसे चलेगी? अब लड़ाई हुई, नेतन्याहू इज द विनर, और नहीं तो अभी करप्शन के मामले में जेल में जाते। ये अपने आप ही एनालाइज करो, फैक्ट्स देखो सामने, फैक्ट से ही, अब फैक्ट विल लीड यू टू द एनालिसिस। बट कोई मीडिया तुम्हें दिखा तो दे इसको, क्योंकि ये लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन के खिलाफ चली जाएगी, तो इंडियन मीडिया में तो हिम्मत है नहीं किसी की को, तो जो ऑफिशियल लाइन है वही न्यूज़ दिखानी है।
इसीलिए मीडिया की जो तुम पढ़ाई करने आए हो थोड़ा मुश्किल काम है. यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल, रैशनल टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, और बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. सर ऐसे तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच चली गई. कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? अभी कितने कितने जर्नलिस्ट के घर के छापे पड़े पता है? न्यूज़ नहीं पढ़ती. अभी सारे कितने 60 लोगों के छापे मारे गए. ठीक है, उसमें कितने तो मेरे दोस्त हैं जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद लिख लिख के पैसा कमा के घर चला रहे हैं. लेकिन छापा इसलिए कि उस वहां पे लिखा क्यों. सर तो फिर तो मीडिया का कोई काम ही नहीं करने दे रहे जो काम. तभी तो चैलेंज है ना तुम्हारे सामने. अब तुम क्या वो बहुत कुशी जॉब के लिए आए हो तो गलत जगह आ गए. हाँ, तो यू हैव टू फाइट. यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम. फ्रीडम कोई देगा नहीं, अपनी फ्रीडम तुम्हें लेनी पड़ेगी. कोई नहीं देता. अंग्रेज देके गए थे क्या? तो आपको बोलने की आज़ादी चाहिए, लिखने की आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, प्राइस भी देनी पड़ेगी. ये कोई वैसा वो क्लरिकल वाला काम नहीं है आप गए 10 to 5 फाइल में नोट लिख के आ गए. इट्स अ डिफिकल्ट. मीडिया का काम बहुत मुश्किल वाला काम है. एंड देन ये आपको समझ पहले आएगी तब तो फाइट करेंगे. दो चीज़ चाहिए आपको, समझ चाहिए और साहस चाहिए लड़ने का. तो आपको पहले तो समझिए. जितना मैंने अब बताया इसमें से तुम कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि तुमने उस तरह की पढ़ाई नहीं की, उस तरह के लोग नहीं हैं आसपास. और तुम्हारी भी गलती नहीं है. जिस तरह का माहौल है कि सारा झूठ चला के फिर एक गलत ही नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है. तो इसीलिए मैंने टॉपिक में ही रखा, इसीलिए कि उस नैरेटिव को आपको समझना है. ओनली देन यू विल रीच द ट्रुथ. ठीक है. अब अगर कोई एक दो सवाल होंगे तो मैं ले लूँगा, बाकी मैंने तो ज़्यादातर बता ही दिया जितने भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी. खड़े होके बोलो तो लोग सुन लेंगे तुम्हें. ओशो अकॉर्ड कौन बताएगा? ये बता देगा, ये अनस बता देगा. ये बताओ अभी ओस्लो ना, ओस्लो अकॉर्ड. ओस्लो अकॉर्ड ना, हाँ ओस्लो अकॉर्ड. हाँ बताओ क्या है अभी आशुतोष? तुम्हें पता है तो बताओ. इतने अकॉर्ड हैं, मैं इमीडिएटली प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई बिलीव ये 2010 वाला अकॉर्ड है. डू यू नो? बताओ तुम तो वो नहीं तो चेक कर लो गूगल पे. पिछले 20 सालों में व्हाट आई कैन टेल यू, अब एग्जैक्टली सारी चीज़ मैं याद नहीं रख सकता. पिछले 20 साल में क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ. तो फॉर द लास्ट 20 years what US has been doing, US has been trying to ensure that peace is restored in this area. उसके लिए इज़राइल के ऊपर प्रेशर बना के और बाकी जितने और मिडिल ईस्ट के बड़े कंट्रीज़ हैं उन पे प्रेशर बना के उनके बहुत सारे अकॉर्ड्स करवाए हैं. जैसे अभी तुमने रिसेंटली देखा हो कि हाँ एक चीज़ इसके साथ ही बता देता हूँ. जो इज़राइल है, इज़राइल के साथ बहुत सारे देश हैं दुनिया के जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं. समझ गए? दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे. और जो देश इज़राइल को एज कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसमें मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश हैं. तो अमेरिका ने, यूएस ने क्या कोशिश की है 20-25 सालों में कि उन सारे देशों को और इज़राइल को एक डायलॉग शुरू करा के अकॉर्ड करा दें और रिकॉग्नाइज करा दें. जिसमें लेटेस्ट है यूएई ने अपनी फ़्लाइट शुरू की इज़राइल के लिए और अपना वहाँ पे एम्बेसडर भेजा. अभी सऊदी अरब से समझौता हुआ इज़राइल का. तो जो देश डेडली इज़राइल के अगेंस्ट में थे उनके रिलेशनशिप यूएस ने पीस को करके और वो करवाए. तो उसी में बहुत सारे, जैसे कह रहा है, बहुत सारे अकॉर्ड्स हुए हैं जिससे कि इज़राइल और पैलेस्टीन का जो झगड़ा है वो कम किया जा सके. ठीक है. और इंडिया भी, इंडिया के यूएस के साथ एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, किसी को याद हो तो बताओ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे.
क्योंकि इंडिया ने ओपनली पीएलओ को और पैलेस्टीन को सपोर्ट किया हुआ था। 1960s में सम टाइम हमारे इजराइल से रिलेशंस बने, और ख़ास तौर से जब जब सरकार में राइट विंग गवर्नमेंट आई इंडिया में, तब हमारे इजराइल से रिलेशन बेहतर हुए। और जब से 2014 में प्योर राइट विंगर्स आ गए पावर में, तो हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ पीक पे हैं इस समय, ठीक है। और जो इसने किसने बताया था तुम दोनों ने, उसका जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर ये है कि जो पैलेस्टीन का झगड़ा है, अगर हम रिलीजन के हिसाब से देखें तो इट इज़ बिटवीन ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स। और इंडिया में जो मेन लड़ाई है, जो प्रोजेक्ट होती है, दैट इज़ बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तो हमारे इजराइल के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दिस इज़ वन, कल्चरल और रिलीजियस बेसिस पे आज की तारीख में। 2, इजराइल वेपन्स के मामले में दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में से है। किसी को भी कुछ भी चाहिए तो इजराइल से ख़रीद ले। तो इंडिया ने अपनी डिपेंडेंस यूएसएसआर मतलब रूस पे कम करके सारे हथियार इजराइल से ख़रीद रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको मिल रही है। तो इंडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार मिल रहे हैं, इजराइल को पैसा मिल रहा है। तो एक ये बड़ा रीज़न है इंडिया इजराइल के क्लोजनेस का। इसके अलावा इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जैसे क्वेश्चन उठ रहा है कि उनको क्यों नहीं पता लगा। इवन इजिप्ट की हाँ जो इजिप्ट की इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी कहा था, लाइक उनको एक बार बोला था कि हमें लग रहा है कि कुछ रॉन्ग होगा, बट तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ये भी है कि मोसाद जो है उसको क्यों नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ है, और इनको बहुत बार बोला भी। तो मोसाद जो एजेंसी है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल की, वो दुनिया की सबसे एफिशिएंट और ड्रेडेड एजेंसी मानी जाती है, CIA से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो तमाम देशों को हेल्प करते हैं। तो इंडिया, मोसाद इंडिया को भी हेल्प करता है इंटेलिजेंस के मामले में, ठीक है। और मोसाद को नहीं पता लगा कि गाज़ा स्ट्रिप में क्या हो रहा है, तो ये कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है। सर बट इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस थी, उन्होंने भी तो उनको एक बार कहा है कि मतलब लाइक उस पे भी तो क्वेश्चन उठता है। किस पे? जैसे इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने बहुत बार इनको वार्न किया था, मतलब कहा है कि ऐसा कुछ हमें लग रहा है कि रॉन्ग हो सकता है, बट मोसाद ने तब भी नहीं किया। तो ये भी क्वेश्चन उठ रहा है। यही तो मैंने भी पहले उठाया ना कि इतने ये हमला हो गया, इजराइल को पता कैसे नहीं, रॉकेट कैसे आए और हमला कैसे हो गया। तो इससे ही पता लग रहा है कि देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कुछ प्रॉब्लम है इसमें सारे एरिया में। तो नेतन्याहू ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, और इस बहाने वो पैलेस्टीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तो एक तीर से कई निशाने हो जा रहे हैं। बट सारी दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि ये खेल तो सारा वेस्टर्न ब्लॉक का ही है, जिसमें सब शामिल है, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, सारे शामिल हैं। मेरा क्वेश्चन है, ऐसा भी हो सकता है कि नेतन्याहू ने खुद ही करवाया हो। भाई स्पेकुलेशन है, लेकिन दिख रहा है, मतलब बाकी तो स्पेकुलेशन ही है। रॉन्ग नहीं था, उसके पास पूरा सपोर्ट आ गया है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि वही है जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, हमें पाकिस्तान की एंटिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, पाकिस्तान को इंडिया की एंटिटी को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। हम तो समझते हैं पाकिस्तान को के बारे में जितनी ख़राब ओपिनियन है वो हम सब रखते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बारे में ख़राब ओपिनियन रखता है। जब दो पड़ोसी एक दूसरे के बारे में ख़राब ओपिनियन रखेंगे, साथ रह ही नहीं पाएंगे। तो इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैलेस्टीन है, इजराइल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुस्लिम्स हैं, जो भी वहीं के हैं, वहीं के ओरिजिनल नेटिव्स हैं, और पैलेस्टीन को मानना पड़ेगा कि इजराइल है और उनकी भी लैंड है। दोनों लोग मान लेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। 67 में अरब कंट्रीज़ ने इसीलिए अटैक किया कि इजराइल क्यों बना दिया यहाँ पे, ये तो हमारा लैंड है, उसने उन्हीं का कब्जा कर लिया। तो अभी जो हो रहा है, इस लड़ाई से तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। और ये पहली बार नहीं है जो पैलेस्टीन में मुस्लिम्स की आबादी है, ये अभी तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। लाखों लाख पैलेस्टीनियंस का मैसाकर हो चुका है हिस्ट्री में, लाखों लाख लोग मारे गए। एक समय में, मैं आई एम फॉरगेटिंग द ईयर,
आशुतोष तुम लोग पढ़ लेना या बता देना, तो ये तुम देख के रहो। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम गाज़ा में रहने वाली करीब 80% आबादी को मार दिया था। वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड इन हिस्ट्री। बचे ही नहीं थे, अब फिर मार देंगे। हाँ सब है, सब है। आज के डिजिटल एज में कहाँ दिक्कत है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो ना हो। हाँ पढ़ने के लिए बड़ी हिम्मत और पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग ही उलझ जाएगा पढ़ के, इतनी चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि गाज़ा में बड़ी बार जेनोसाइड हुआ है, बट वो छोड़ने को नहीं तैयार है अपनी डिमांड को। तो सलूशन तो यही है, जब जो भी लड़ने वाली साइड हैं कहीं भी दुनिया में, वो थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी है ना आपके सामने। यूएई में 6 अलग अलग देश एक झंडे के नीचे आ गए कि नहीं आ गए भाई। अबू धाबी अलग है, दुबई, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सबने मिलके एक देश बनाया हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं आपके सामने। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वो एक पॉजिटिव स्पिरिट चाहिए उसके लिए, तो सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यूएस और यूके और ये सारे लोग हैं, ये कभी दुनिया में शांति होने नहीं देंगे, कुछ भी कर लो। तो ना इंडिया में शांति रहने देंगे, ना वहाँ शांति रहने देंगे। देखो ना, यूक्रेन और रशिया को लड़ा दिया और सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सर अब की बातों से इस वॉर का कंक्लूजन क्या होगा? या तो एकदम ही कोई कंक्लूजन, वॉर से कभी कंक्लूजन तो होता नहीं। हाँ खत्म हो जाएगी। जब तक इजराइल को लगेगा कि उसका एजेंडा पूरा हो गया, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर खत्म हो जाएगी। तो वो वैसे ही रहेगा। हाँ वैसे ही रहेगा, लेकिन उस चक्कर में 1,50,000 पैलेस्टीनियन को मार देंगे। ऐसे तो वो खत्म ही हो जाएंगे एक टाइम बाद। कई बार कोशिश हुई है, वो फिर भी बच जाते हैं। कहाँ मैटर करती है लाइफ? तुम्हें लगता है कि लाइफ मैटर करती है? किसी को नहीं करती, किसी को किसी की लाइफ मैटर नहीं करती। अपना पावर चाहिए, पावर और पैसा, दो ही चीज़ चाहिए इंसान को। यहाँ से तुम लोगों से लेके और नेतन्याहू तक, पावर और पैसा, दो ही चीज़ के लिए आदमी लड़ता है। और क्यों लड़ना, सारी लड़ाई तो इसी की है ना। पावर के लिए चाहिए आपको आर्मी चाहिए, हथियार चाहिए, और जब हथियार आप बनाएंगे उससे आप पैसा कमाएंगे। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो रीबिल्ड होगा, फिर ठेका मिलेगा कंपनी को। इराक को बर्बाद किया, रिकंस्ट्रक्शन किसने किया? यूएस की कंपनीज लगी हुई हैं सब। तो जब पहले तो आपने हथियार दिए, फिर लोगों को मरवाया, डिस्ट्रक्शन करवाया, फिर अपना सामान बेचा उसके बाद, और कहा देखो हमने नया देश बना दिया। अब बुरा तो लगता है, मैं 6 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ ये जो हो रहा है उसको देख के, तो मैंने कहा मैं बात करूँ। हाँ किसके? नहीं लेबनान, चलो लेबनान के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी चीज़ें हो जा रही हैं। लेबनान बॉर्डर पे ही है, ठीक है, और लेबनान 67 की वॉर में शामिल था, अभी वो थोड़ा सा पीछे है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेबनान या और भी बहुत सारे देश हैं, तब जैसे कि यही है अपना फ़लस्तीन की बात करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पर वहाँ की सरकार पावरफुल नहीं है, वहाँ के जो संगठन है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे ख़तरनाक आतंकवादी संगठन है, सारी जवाब तो तुम्हारी पास है, बाकी लोग तो बेचारे सब। दुनिया का सबसे जो ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, ठीक है, वो लेबनान बेस्ड है। हमास से 20 है, 19 नहीं है वो, ठीक है। और हमास तो अभी कर दिया इन्होंने, इजराइल से असली लड़ाई हिजबुल्लाह लड़ रहा है इतने सालों से। लेबनान सरकार नहीं लड़ रही है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, और लेबनान सरकार की हिम्मत नहीं है कि हिजबुल्लाह से कुछ बोल दें।
तो लेबनान हिजबुल्लाह क्या करता है, वो रॉकेट दागता है इजराइल के ऊपर। इजराइल क्या करता है, जाके लेबनान पे बम गिराता है, बम गिरा रहा है लेबनान के ऊपर, बिल्कुल वही जो अभी बात हो रही थी हमास की। अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह और बम गिर रहा है लेबनान के ऊपर। तो जैसे कि अभी हमास ने बम वो रॉकेट गिराए तो पैलेस्टीन के ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है। तो लेबनान बहुत अलग तरह का देश है। वैसे मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं, कितने कंट्रीज़ हैं इरम मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री लेबनान है। हाँ, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस का नंबर सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में, फैशन में, तुम में से बहुत सारे लोग फैशन वाले होंगे ना। वो मैं वर्ल्ड मैप पे बता रहा हूँ, लेबनान इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री। मिडिल ईस्ट का तो सबसे प्रोग्रेसिव है ही है। इसलिए तमाम कई फिल्म, इंडिया से भी कई फिल्में जाके भी शूट की हैं उन्होंने लेबनान में, बिल्कुल, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है। तो मुझे किसी ने लेबनान का नाम ज़्यादा सुना ही नहीं होगा, कभी कोई गया भी नहीं होगा। तो वो इससे बड़ा अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री और बहुत प्रोग्रेसिव है। एजुकेशन में भी बहुत आगे है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम भी है कि हिजबुल्लाह भी है वहाँ। ठीक है, इरम कुछ और रह गया बताने को? हो गया ना सर? ठीक है, ख़त्म करते हैं सेशन। भूख भी लग रही है बहुत सारे लोगों को ना। ओके देन, थैंक यू।